Hello, everybody. So now today we are here starting with the story, My Greatest Olympic Prize by Jesse Owens, which is an autobiographical story, means written by the person himself about himself. So इससे पहले आपकी ब्लू बीड है, but blue bead it is since it's very long, so we shall do it at the last. So let's start with My Greatest Olympic Prize. First let us read about the author. So it is an autobiography. मतलब मान लो मैं अपने ऊपर एक किताब लिखूं या कहानी लिखूं, खुद लिखूं और खुद के बारे में लिखूं, दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी. जैसे ओन्स द सन ऑफ अ शेयर क्रॉपर, बेसिकली फार्मर जो ज़मीन किसी और से लेता है और उस ज़मीन मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ज़मीन लेता है और उसके पैसे भी देता है, मतलब ठेके पे लेना जिसको हम बोलते हैं. सो जैसे ओन्स वॉज द सन ऑफ अ शेयर क्रॉपर एंड ग्रैंड सन ऑफ अ स्लेव, achieved what no Olympian before him had accomplished. जैसे ओन्स की स्पेलिंग गलत मत करना, स्पेशली ओन्स के, राइट. हिज स्टनिंग अचीवमेंट, जैसे ओन्स की स्टनिंग अचीवमेंट ऑफ 4 गोल्ड मेडल्स. कितने गोल्ड मेडल्स? 4 गोल्ड मेडल्स एट द 1936 ओलंपिक गेम्स इन बर्लिन. बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी. 1936 के बर्लिन के ओलंपिक गेम्स में उसने 4 गोल्ड मेडल जीते. हैज़ मेड हिम द बेस्ट रिमेंबर्ड एथलीट इन द ओलंपिक हिस्ट्री. Owns में people usually write OWNS. OWENS you have to write, okay? The following is a true story of a friendship between two great athletes that burgeoned, means that met during the 1936 Berlin Summer Olympics. तो ये दो फ्रेंड्स की कहानी है जो कि 1936 की बर्लिन समर ओलंपिक्स के टाइम मिले थे. Hitler had spread the myth, means rumor, that one ethnic group was superior to all others and refused to acknowledge that a black man could ever be successful. He said कि कभी एक black man तो कभी successful नहीं हो सकता. काला आदमी, black Americans and all Negroes can never be successful, and there was an ethnic group which was superior to all other races. This affected African American track and field athlete Jesse Owens so badly that he almost failed to qualify for the long jump finals. उसके दिमाग में यही विचार चल रहे थे जो हिटलर ने बोले थे, जिसकी वजह से वो लॉन्ग जंप जो होता है, लॉन्ग जंप, उसकी फाइनल्स के लिए ट्रायल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया. द सिचुएशन सीम होपलेस until his rival, means opponent, Luz Long, a German athlete, spoke to him encouragingly, giving Owens a tip that helped him qualify. फिर उसका जो जर्मन ओपोनेंट था, एथलीट था, एक जर्मन एथलीट जो उसका ओपोनेंट था, राइवल था, ही उसने उसको एक एडवाइस दी जिसकी वजह से वो क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल हुआ. उसने क्वालिफाई कर लिया ट्रायल्स, ओके. Long knew that if Jesse Owens succeeded, it might jeopardize less down his chances of winning the gold medal since they were competing against each other. Nevertheless, Luz Long put winning a medal at risk and continued to urge, means request Owens to try harder. उसने जैसे Owens को फिर भी कहा कि भाई तू और कोशिश कर और ये टिप ले मेरे से, ये कर. हालांकि वो खुद हार सकता था उसको ये टिप्स वगैरह देके, राइट, but still he risked his medal winning. It was this act of Luz Long's that led Owens to first qualify. पहले तो उसने ट्रायल्स में क्वालिफाई किया, then go on to win the medal and set a record. फिर उसने मेडल भी जीता और एक रिकॉर्ड भी बनाया. His stunning achievement of 4 gold medals at the 1936 Olympic Games in Berlin has made him the best remembered athlete in Olympic history. इसको 4 गोल्ड मेडल मिले और जिसके लिए इसको इस ओलंपिक हिस्ट्री में बहुत जाना जाता है. More importantly, it led to a lifelong friendship between the two men, which ended only when Long was killed in action in World War II. फिर जो वर्ल्ड वॉर टू ही, तब लुजलोंग भी लड़ा होगा या कुछ वैसे सिविलियंस को भी मारा जाता है, तो तब उसकी डेथ होगी लुजलोंग की, तब वो फ्रेंडशिप का ख़त्म हुआ, तब वो फ्रेंडशिप ख़त्म हुई. अदरवाइज इट वॉज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विच ओनली एंडेड आफ्टर लुजलोंग मेट हिज एंड एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो लेट्स स्टार्ट विद माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसे ओन्स. So Jesse Owens was an Afro-American, or you can also say Negro, but it would be better to write Afro-American. Exams में आप Afro-American, African-American या Afro-American much better ये लिखोगे, ठीक है, Afro-American. Put this hyphen also. Okay. So Luz Long was a German, Jesse Owens was Afro-American. So it was the summer of 1936. The Olympics games were being held in Berlin. Already told you, Berlin, capital of Germany. Because Hitler childishly insisted, means बच्चों की तरह उसने insist किया कि अपनी बात मनवाई, that his performers were members of a master race, means a superior race, Aryan race he had in Germany. Nationalistic feelings were at an all-time high. जब कोई कह दे कि इंडियन सबसे बेस्ट है तो हमारी नेशनल फीलिंग सबसे पीक पे चली जाती हैं. सिमिलरली हिटलर ने भी कह दिया था कि हमारी आर्यन रेस सबसे सुपीरियर है जर्मन रेस, मास्टर रेस.
I wasn't too surprised about all this. I had trained, sweated and disciplined myself for 6 years with the games in mind. तो जैसे उन बोल रहा है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था, हालांकि वो था, बट ही इज सेइंग दैट आई वाज नॉट, क्योंकि उसने ट्रेन किया था अपने आप को, पसीना बहाया था, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन हिमसेल्फ फॉर 6 years, देखो 6 साल, विद द गेम्स इन माइंड कि उसको गेम्स में जीतना है. वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन दी बोट, ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स. तो वो बोट पे जा रहा है एंड ही कुड जस्ट थिंक कि मैं घर पे 1 या 2 गोल्ड मेडल्स तो लेके ही जाऊंगा. आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप, उसकी निगाह, उसकी नज़र सबसे ज़्यादा किस पे थी, रनिंग ब्रॉड जंप पे. ठीक है, रनिंग ब्रॉड जंप पे. अ ईयर बिफोर एज अ सोफोमोर, व्हाट इज अ सोफोमोर, second year student at Ohio State University, I had set the world's record of 26 feet 8 and 1 by 4 inches. You have to learn this. Everyone kind of expected me to win that Olympic events hands down easily. सबको लगता था मैं easily Olympic event जीत जाऊंगा, because जब मैं Ohio State University में second year student था तो मैंने ये record set किया था, right? Then I was in for a surprise when the time came for the broad jump trials. Description of Luzlong aayega bhi. I was startled, means surprised to see a tall boy. So Luzlong was a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps, means jumps. Practice jumps पे वो 26 feet jump कर रहा था भाई. मैं तो surprise हो गया उस German athlete को देख के. He turned out to be a German named Luzlong. I was told that Hitler had kept him under wraps, means Hitler ने उसको छुपा के रखा था, hidden, evidently hoping to win the jump with him ताकि वो जीत जाए, जर्मनी जीते वो कंपटीशन. देन आई गेस दैट इफ लॉन्ग वोन इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन, नाजीज की आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी, मीन्स नाजीज की जो थ्योरी है कि आर्यन सुपीरियर है उसको वे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. आफ्टर ऑल मतलब और प्रूव करेगा. आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो नेटिव ऑफ अमेरिका. ठीक है. A little hot under the collar, means he was angry, resentful about Hitler's way. I determined to go there and really show Der Führer. It is a title given to the Hitler by the Germans. Der Führer and his master race, who was superior and who was not. वो कह रहा था कि लुजलोंग को देख के उसने सोचा जैसे उन्होंने कि मैं दिखा दूंगा इस हिटलर को कि कौन सुपीरियर और कौन सुपीरियर नहीं है, इसकी रेस को भी. Which I have highlighted with green highlighter. These are very important. This Der Führer also for MCQs. Then this paragraph is not very important but still we'll read. An angry athlete, ये वाला important है, angry athlete वाली line. An angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you. कोई भी गुस्से में जब athlete होता है तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा. I was no exception. ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जम्प्स, 3 क्वालिफाइंग जम्प्स होते हैं, पहले भी मैंने बहुत बड़ा फाउल कर दिया, दूसरे में भी किया, और फिर उसने सोचा कि क्या मैं 3000 माइल सिर्फ ये करने के लिए आया हूँ, टू फाउल. So on the first of my 3 qualifying jumps, I leaped from several inches beyond the takeoff board for a foul. Means I jumped from several inches beyond the takeoff board और इससे foul हो गया. On the second jump, I fouled even worse. Did I come 3000 miles for this? I thought bitterly. To foul out of the trials and make a fool of myself. ताकि मैं trials में ही foul कर दूँ और खुद गधा साबित हो जाऊँ. Right? Then walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the dirt. पिट से काफ़ी थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने रेत में पैर मारा. अभी लुजलोंग की अपीयरेंस भी आएगी, ठीक है इसमें. सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर. आई टर्न टू लुक इन द फ्रेंडली ब्लू आइज. वो टॉल बंदा था, लुजलोंग ब्लू आइज थी, ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर. ही हैड क्वालिफाइड ईजिली फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट. ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंडशेक. उसने पहले अटैम्प्ट में ही अपने ट्रायल्स क्वालिफाई कर लिए थे और उसने मुझे हैंडशेक ऑफर किया. जैसे उन्स, आई एम लुजलोंग, आई डोंट थिंक वी हैव मेट. ही स्पोक इंग्लिश वेल दो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट. जर्मन था तो इंग्लिश बढ़िया बोलता था, बट एक जर्मन ट्विस्ट के साथ, और उसने बोला कि आई थिंक हम पहले कभी नहीं मिले हैं जैसे उन्स, मैं लुजलोंग हूँ. ग्लैड टू मीट यू, आई सेड. देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, आई एडेड हाउ आर यू. आज बाय जैसे उसने अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए पूछा कि हाँ भाई कैसा है तू. तो वो कहता आई एम फाइन. द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, कि तू कैसा है ये बता, मेन क्वेश्चन तो ये है. तो फिर जैसे उन्स कहता है व्हाट डू यू मीन. समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, मतलब कुछ ना कुछ तुझे ट्रबल ऑन कर रहा होगा. ही सेड, लुजलोंग सेड, प्राउड द वे फॉरनर्स आर व्हेन दे हैव मास्टर्ड अ बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग, मींस अमेरिकन लैंग्वेज. यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आइज क्लोज, सेड बाय लुज. तो लुज कहता है तुझे तो अपनी आंखें बंद करके क्वालिफाई कर लेना चाहिए, तो ईजिली क्वालिफाई कर सकता है. क्या हो गया, कुछ ना कुछ तुझे अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, कुछ खा रहा है तुझे अंदर से. बिलीव मी आई नो इट, आई टोल्ड हिम एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन. कि कहता फिर जैसे उन लुजलोंग को कहता कि यार मुझे पता है यार, उसको बढ़िया लगा ये बोल के. ही डिड नॉट शो हिज नर्वसनेस बिकॉज लुजलोंग वॉज हिज कॉम्पिटिटर को थोड़ी ना दिखाएगा कि मैं कमज़ोर हूँ या मुझसे हो नहीं रहा. राइट. फॉर द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स वी टॉक टुगेदर. कुछ अगले मिनट हमने बातें की. आई डिड नॉट टेल लॉन्ग वट वॉज ईटिंग मी, वट वॉज बॉदरिंग मी. मैंने नहीं बताया लुजलोंग को, बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर. बट लुजलोंग समझ गया मेरे गुस्से को.
एंड ही टुक पेन्स टू रीअश्योर मी, उसने मुझे कंफर्टेबल करने के लिए एफर्ट्स की. ऑल दो हीड मीन्स लुज लॉन्ग बीन स्कूल्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, ऑल दो उसने अपनी स्कूलिंग नाजी यूथ मूवमेंट में की थी. ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमेसी बिजनेस एनी मोर, बट वो नाजी सुपीरियरिटी थ्योरी में नहीं विश्वास रखता था. दैन आई डिड. वी लाफ्ड ऑफ द फैक्ट दैट ही रियली लुक द पार्ट, मीन्स ही लुक लाइक नाजी बट नो क्वालिटीज ऑफ नाजी ही हैड. दो एन इंच टॉलर देन आई, जैसे उनसे 1 इंच बड़ा था. ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, मस्कुलर लीन फ्रेम था उसका. क्लियर ब्लू आइज, ब्लॉन्ड हेयर, मीन लाइट ब्राउन से हेयर थे, जैसे हमारे भी लाइट ब्राउन से होते हैं, कईयों के ब्लॉन्ड हेयर थे. एंड अ स्ट्राइकिंगली हैंडसम, मीन्स अट्रैक्टिव फेस था उसका, हैंडसम. चाइजल्ड फेस मीन्स शार्प फीचर्स, शार्प नोज एंड ऑल दिस. फाइनली सीइंग दैट आई हैड काम डाउन समवट, ही पॉइंटेड टू टेक ऑफ बोर्ड. उसने देखा कि जैसे उन शांत हो गया, उसने टेक ऑफ बोर्ड की तरफ उंगली की. लुक, ही सेड, व्हाई डोंट यू ड्रॉ लाइन अ फ्यू इंचेस. उसने एडवाइस दी कि तू वहाँ से एक फ्यू इंचेस, एक दूर एक लाइन बना ले टेक ऑफ बोर्ड से. इन ड्रॉ लाइन अ फ्यू इंचेस इन बैक ऑफ द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर. वहाँ से तू अपना टेक ऑफ ले उस लाइन बना के. यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल एंड यू सर्टेनली ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you're not first in the trials? Tomorrow is what counts. तो वो कहता कि फिर क्या हो अगर तू ट्रायल्स में फर्स्ट नहीं आया, कल है जिसको माना जाएगा. ओके, मतलब क्या हुआ अगर तू ट्रायल्स में पहले नंबर पे नहीं आया, वट मैटर्स इज टुमारो, द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, फाइनल इवेंट, राइट. सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट, मीन्स फ्लो बैक ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ वट ही सेड हिट मी, कि जो उसने सच बोला था कि हाँ कल है जो मेन चीज़ जो मैटर करती है, तो इससे मेरी टेंशन तो दूर हुई. कॉन्फिडेंटली आई ड्रू अ लाइन अ फुल फुट इन बैक ऑफ द बोर्ड एंड प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर. आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर. उसकी दी हुई एडवाइस से मैंने बैक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड से फ्यू इंचेस दूर एक लाइन लगाई और मैंने उससे जंप किया एंड आई क्वालिफाइड. दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लुजलॉन्ग रूम इन द ओलंपिक विलेज. ओलंपिक विलेज एक ऐसा विलेज है जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स रहे थे, और लुजलॉन्ग के कमरे में जैसे उन्स गया टू थैंक हिम. आई न्यू दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स फॉलोइंग डे. अगर वो ना होता तो मैं अगले दिन फाइनल्स के फाइनल इवेंट में जंप ही ना कर रहा होता. वी सैट इन हिज क्वार्टर्स, टॉक्ड फॉर 2 hours, 2 घंटे बातें की अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, आर्ट सेल्स, द वर्ल्ड सिचुएशन, अ डजन अदर थिंग्स. किस किस बारे में बातें की? ट्रैक एंड फील्ड, खुद के बारे में, आर्ट सेल्स, एंड अबाउट द वर्ल्ड सिचुएशन. When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship has been formed. Luz would go out to the field the next day trying to beat me if he could, but I knew that he wanted me to do my best, even if that meant by my winning. तो हमें पता था अगले दिन हम एक दूसरे के खिलाफ compete करेंगे, और लुज फिर भी चाहता था कि जैसे उन्स यानी मैं बहुत अच्छा करूं, बट चाहे उसके लिए उसकी हार क्यों ना हो जाए, लुज लॉन्ग की खुद की. एज इट टर्नड आउट लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड. लुज ने अपना खुद का पुराना पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया. इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन टू पीक परफॉर्मेंस. अगर कोई आपसे बेटर करे तो आपको लगता है मैं उससे भी बेटर करूंगा, तो जैसे उन्होंने उससे भी बेटर परफॉर्म किया. I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 and 5 by 16 inches, learn it. He was at my side congratulating me. जब मैंने एक वर्ल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया 5 and 5 by 16 inches का, 26 फीट तो पहले भी था, 26 फीट 8 and 1 by 4 inches था, नाउ इट इज 26 फीट 5 and 5 by 16, 26 फीट 5 and 5 by 16, पहले था 26 फीट 8 and 1 by 4 inches, राइट. ये देखो 26 फीट 8 and 1 by 4 inches, नाउ इट इज 26 फीट 5 and 26 फीट 5 and 5 by 16 inches, राइट. 26 फीट 5 and 5 by 16 inches का मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, एंड ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एट माई साइड. Then, despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away, 100 yards away एक stand था जहाँ से हिटलर उन दोनों को घूर रहा था. Luz shook my hand hard, and it was not fake smile with a broken heart sort of grip either. मतलब एक टूटे हुए दिल से कि वो हार गया फिर भी स्माइल दे रहा है, ऐसी स्माइल नहीं थी. बढ़िया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया उसने, बिकॉज दे बोथ विल नाउ go to their own countries as games are over, so they were like hand shaking, right. You can melt down all the gold medals and cups I have. तुम सारे cups और medals को melt down कर दो, and there could not be a plating on the 24 carat friendship I felt for Luz Long at that moment. उसने मुझे वो 24 कैरेट गोल्ड का मेडल जितवाया था, उस फ्रेंडशिप के मेडल पे लूज भी वो प्लेटिंग नहीं कर सकता. दैट couldn't be a plating on the 24 carat friendship that I felt for Luz Long at that moment. I realized then too that Luz Long was the epitome, means example of what Pierre de Coubertin, this is very important, Pierre de Coubertin, founder of the Model Olympic Games. Who was the founder of Model Olympic Games? Pierre de Coubertin. Founder of the Model Olympics must have had in mind when he said the important thing, this is very important, this is the main message of the story. ओके, द स्टोरी का मेन मैसेज ये है, और ऑल्सो ऑफ पियरे दे कोबर्टन, द फाउंडर ऑफ मॉडल ओलंपिक्स गेम्स. व्हाट इज इट?
that the important thing in the Olympics games is not winning. जीतना ज़रूरी नहीं, but taking part is more important. But taking part is more important. The essential thing in life is not conquering but fighting well. Life में भी जीतना ज़रूरी नहीं है, but लड़ना ज़रूरी है. एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स आए वो इम्पॉर्टेंट नहीं, बट एग्ज़ाम में जैसे आपने कैसी तैयारी की वो इम्पॉर्टेंट है. पेपर छूट गया, इट्स ओके, बट आपने उसकी तैयारी अच्छी की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वही बोला है, द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल. लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से लड़ना, नॉट वट यू कॉन्कर. So this was all about today's video, and this chapter has ended with this line. It was a very beautiful chapter, very very beautiful story it was, and an autobiography of Jesse Owens. So any doubt, you can do let me know. Thank you very much.